की सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया। रंगी सारी जी। तो रंगी गुलाबी चुनरिया ये तो लाजवाब गाना है साहब आपने जो बनाया। इसकी कहानी तो बहुत ही बहुत मज़ेदार है, क्योंकि ये पहले मैं एक्चुअली जब मैं छोटा था 13-14 साल का था, डैड बहुत पैशनेट थे करियर को लेके, तो उन्होंने मुझे साउंड इंजीनियरिंग शुरू करवा दिया था। कि मॉम जब व्हेन डैड पास्ड अवे तो मॉम ने एक एल्बम रिलीज़ करी थी एक दिन नाम से। ओके, वो गाना भी बहुत ही अच्छा है, एक दिन। गुनगुना दो ना थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ हाँ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोरे मारे नजरिया सांवरिया रे। No introduction to be given to this young man. Kanishk, a hearty welcome to Bhopal. Thank you so much. What gets you to Bhopal? Karan. Jiflif. Yes, Jiflif. Okay. So you are performing today? Yes. Okay. Yes. And where is the performance today? Boat Club. Boat Club. This is actually my first New Year's Eve performance, so I'm really glad I'm doing this with Jiflif. Great. Yeah. But you have come to Bhopal before also. I have. Okay. Again for Jiflif. Again, this is your third visit now? Yes. Okay. Yes. How do you like Bhopal? I love it. Bhopal is very peaceful. आज भी हम जब सुबह आ रहे थे तो मेरे साथ देवश्री थी आके, तो वही पूछी थी क्या सब सो रहे हैं भोपाल पे, इतना ही शांत रहता है भोपाल। एंड इट वाज लाइक व्हाट 10:30 in the morning, so बहुत peaceful लगता है। Maybe it was a holiday today, Saturday and Sunday. Possible. It's a long weekend Possible. of the New Year's. Okay, Yeah. great. So you'll be performing today at the Boat Club at about 10 o'clock. Yeah, something on 10 o'clock. Before I proceed, my dear onlookers of Cook Speaks, first of all, thanks a lot. Gave me time in such a short notice. Thank This you. young man is getting married in January. He's hooked up. So congratulations. Thank you. Heartiest congratulations from all of us to Kanish getting married in January. Thank you. Okay. Now we go back to your. There was a lot of anxiety. A lot of people were asking me also. Your first album released in 2014, 2015. Right. Trance Yeah. with Khusro. Ji, yes. Your father expired in 2011. Yeah. And you were pretty emotional about your dad. Because Yeah. you attribute your singing and your dedication and your जिसे कहते हैं चाहत गाने की to अपने पिताजी की तरफ. क्या ट्रांस विद खुसरो एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रिब्यूट या रिमेम्बरेंस रहा पिताजी के लिए? बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक एक चीज़ ये थी कि मैं वो मेरे करियर को लेकर बहुत पैशनेट थे। वो हमेशा चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं, एंड इट वाज एक ऐसा था कि मैंने पहली एल्बम रिलीज़ करी और वो वहाँ नहीं थे, तो मेरे लिए एक तरीके से एक डेडिकेशन ही था। एंड मुझे याद है जब मैं नॉमिनेट भी हुआ था ये एल्बम के लिए मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स में और जीमा के लिए, तो मॉम ने भी यही बोला था कि अगर डैड यहाँ होते तो बहुत खुश होते और बहुत प्राउड होते। क्या बात। तो एक तरीके से मैं बहुत खुश होता हूँ विद एवरी थिंग दैट आई डू एंड एवरी सॉन्ग दैट आई रिलीज और एनी प्रोजेक्ट दैट आई डू, उससे जो भी अचीवमेंट जो भी मिली है, आई लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई फादर। Was it a very sudden death of your dad or was he sick or something? It was very sudden. Was very sudden. So he एकदम से one day he complained a lot of pain in his stomach, and it turned out to be pancreatitis. Okay. So within 2 days he passed away. चलिए साहब, मैं God bless his soul wherever he Yeah. is. I'll be so happy to see the young man doing so well. Kanishk, there have been many examples in the film industry and in the music industry. You Right. have brother and brother. Latin Jatin is there. Yes. Friends are there. Shankar Jaikishan is there. Yes. Lakshmikant Pyarelal is there. Father son duo is there. SD and RD, they were never together, but they were Guru Chelas. Yeah. You have the sitar people, or you have many people. They have the combination. Mother and son, a very rare combination. Yeah. So how did you interact? Your mother is a very renowned and a celebrity herself. So how was it sharing the same platform
for your compositions, for your production with your mom? तो And what brought you together? राइट तो आई थिंक आफ्टर डैड आई थिंक घर पे जैसा माहौल रहा है विच इज़ दैट हम लोग तीनों ही म्यूजिशियंस हैं. माई ब्रदर इज ऑल्सो म्यूजिशियन एंड Kavish, your brother is Kavish said, yes. tell these people after some time. Yeah. Yes. So he's invented his own instrument, Noori. Yeah. And he has his own music. I have my own form of music और mom का obviously अपना music है. पर घर में एक तरीके से जो एक environment build करा है वो mom ने ही करा है और उनको ही सुन के हम बड़े भी हुए हैं. बट एक चीज़ होती है कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो और एक चीज़ होती है कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है. इज़ इट मदर एंड सन और इज़ इट मोर लाइक यू नो कि हम दोस्त हैं. तो वो माँ बेटे का रिश्ता तो बचपन से ही होता है बट वी बिकेम फ्रेंड्स आई थिंक जब मैं कॉलेज में आया था. व्हेन आई ओपनड अप टू हर अबाउट कि मैं क्या फील कर रहा हूँ अबाउट मैं बहुत वल्नरेबल हो गया था उनके साथ. फिर वो भी हो गई थी तो एकदम से ऐसा रिश्ता बन गया था कि जहाँ पे लाइक यू नो वी स्टार्टेड शेयरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड देन वी वर एट ईज कि हम एक साथ कुछ कर सकते हैं. पहले मैं एक्चुअली जब मैं छोटा था 13-14 साल का था डैड बहुत पैशनेट थे करियर को लेके तो उन्होंने मुझे साउंड इंजीनियरिंग शुरू करवा दिया था कि तुम अभी 7th में हो चलो सीखो ये सब. तो I have been recording my mother's vocals since I was 14. Okay. So I have like more than a decade experience For recording as well. recording. That's great, कि yeah. कैसे किसी भी आर्टिस्ट को तो उनको तो रिकॉर्ड करता ही था कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी आते थे उनको भी रिकॉर्ड करता था. सो रिकॉर्डिंग एनीबडी is not just like a technical job. It's not like about placing microphones and you know checking levels. It is about like अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है हाउ टू गेट द बेस्ट Out of it. द आर्टिस्ट. तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था मॉम को रिकॉर्ड करते कि मुझे उनकी सारी बारीकियाँ पता लग गई थी अच्छा okay. इनसे कैसे मुझे निकालना है. सो मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाता था उनके साथ कि नहीं आप ऐसे ही गाओगे. तो आप लोग का फिर प्रोफेशनल रिलेशन ज्यादा रहा हाँ जब रिकॉर्डिंग में बैठते थे. Yes, absolutely. मदर सन का था ही. एब्सोल्युटली जब भी हम काम करते हैं वी आर वेरी प्रोफेशनल. मैं मॉम से ज़्यादा मैं प्रोफेशनल होता हूँ. नहीं आपने जैसे बताया कि आप डांट देते थे तो प्रोफेशनलिज्म तो था ही. हाँ मैं तो अभी भी करता हूँ. अभी भी कोई भी जैसे कुछ टेक मुझे चाहिए होता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये तो चाहिए एंड इफ फॉर वॉट एवर रीज़न वो नहीं आ पाता हम लाइक ऐसे नहीं चलेगा ऐसे करना पड़ेगा. बट आई नो मुझे इट वॉज लाइक एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बट वो टेक बहुत अच्छा है. मॉम जब व्हेन डैड पास्ड अवे तो मॉम ने एक एल्बम रिलीज़ करी थी एक दिन नाम से. ओके. वो गाना भी बहुत ही अच्छा है एक दिन. गुनगुना दो ना थोड़ा सा. हाँ क्योंकि एक मेमोरी में है आपके पिताजी की फॉर योर डैड यू नो स्पेशली संग बाय योर मदर. या सो व्हाई नॉट जस्ट हैव अ लाइन. मुझे इसकी लिरिक्स पूरी याद नहीं कोई है. बात नहीं, एक तरन्नुम के तौर पे गुनगुना सकते हैं आप. एक दिन और जिंदगी को मिला एक दिन और जिंदगी ने जिया एक दिन पूछता था रातों को एक दिन और मिला था बातों को एक दिन नज्म जैसी है तो अल्फाज बहुत खूबसूरत. बहुत. तो ये पूरी एल्बम जगदीश प्रकाश जी ने लिखी है. क्या बात. तो गज़लें हैं नज़में हैं तो कुछ करीबन 8 से 10 गाने थे. तो मुझे ये गाना क्योंकि इतना इमोशनल गाना है एंड because that incident only happened so recently and she was recording this song, it was very emotional for her. Yeah, it must be a very emotional moment. So I had to, you know, not be in that space. I had to be someone, you know, to take out the best वो expression. तो मुझे वो याद है like she was struggling to sing this song but she sang and with you know with such grace. Absolutely.
Trance with Khusro. Ji. That was the title of your that. You know, I've been reading a lot, but I thought best Kanish would describe it. Yeah. Why did you select Trance with Khusro, and what exactly? It's basically a sort of a fusion, or what? It's a fusion. It's a fusion album. So it is basically an amalgamation of Sufi music, Sufi poetry with electronic music. Okay. तो this also started very accidentally. जब मैं साउंड इंजीनियरिंग भी सीख रहा था तभी मैंने साउंड इंजीनियरिंग कहाँ से करी? कहीं से नहीं करी. Okay. एज इन लाइक एक टीचर आते थे, वो मुझे घर पे सिखाते थे. विक्रांत हजारे, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ अविनाश ओक. अविनाश ओक बहुत बड़े साउंड इंजीनियर हैं जो मुंबई में सबसे पहले एक दो ही स्टूडियोज हुआ करते थे, वेस्टर्न आउटडोर करके. Okay. जहाँ पे लता जी, आशा जी सब जाके वहीं जाके रिकॉर्ड करते थे. तो अविनाश ओक जी वहाँ के लीड इंजीनियर थे. तो उनके अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और विक्रांत हजारे मेरे टीचर थे जो उनके स्टूडेंट थे. अच्छा, उनसे सीखा? मैंने उनसे सीखा था. तो वो घर पे आते थे मुझे सिखाने के लिए. तो मुझे मतलब मैं आई स्टार्टेड ऑफ विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, बट देन आई पिक्ड अप प्रोड्यूसिंग म्यूजिक. लाइक मुझे मन कर गया था कि मुझे म्यूजिक बनाना है. लाइक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक से और मुझे सब चीज़ें पता लग रही हैं, पर एक वो था कि कुछ बनाना है, बीट्स बनानी है या कुछ और करना है. सो आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग. फिर मैं ऐसे बैंक बनाता गया, ऐसे कुछ 10-20 ट्यून्स का. हाँ, ऐसे आधा मिनट, एक मिनट का एक ऐसी ग्रुप. अल्फाज तो होंगे नहीं आपके? नहीं, सिर्फ ओनली म्यूजिक. लाइक कोई मेलोडी है, फिर उसके ऊपर एक बीट. हाँ, तो ये मैं सुनाता रहता था उनको, मॉम को. तो उन्होंने बोला, अरे ये जो तूने बनाया एक बार बजा. तो मैंने प्ले किया, मतलब इसका लूप बना दे. 10 मिनट का लूप बना दे. तो मैंने 10 मिनट का लूप बना दिया और मॉम जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग ऑन टॉप ऑफ इट. एंड मैंने जब रिकॉर्ड किया, वो गा रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि वाओ, दिस इज pretty young that time. आई वाज वेरी यंग. तो जो उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था वो था आज रंग है. Okay. एंड आई वॉज माइंड ब्लोन बाय कि हमने ये क्या विटनेस किया. एंड व्हेन वी हर्ड इट वी वर लाइक वाओ, दिस इज सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट कि आप सूफी म्यूजिक. This was a part of Trance with Khusro. Yes, ये पूरा नाम, ये सब कुछ बाद में मॉम ओनली केम अप विद द नेम. कि ऐसा कुछ नाम रखते हैं कि तब बहुत अच्छा नाम रहेगा. सो देन हमने और गाने रिकॉर्ड करे. इट टुक मी 3-4 years to make this album because I was very young and I didn't know how to make music. I was just listening to a lot of artists, but मैं एक यही कोशिश थी कि मैं अपनी साउंड बनाऊं और मैं किसी को ज़्यादा कॉपी ना करूं. तो मैं इस दौरान, और ये भी था कि मुझे इंडियन एलिमेंट्स भी चाहिए, नॉट जस्ट वोकल्स बट ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स. तो मैंने फ्लूट रिकॉर्ड करी, मैंने इसराज रिकॉर्ड करी है जो सारंगी जैसी साउंड करती है. तो You used a lot of Indian instruments. Yes. मैं बहुत सारा म्यूज़िक सुन रहा था. मैं एशियन अंडरग्राउंड म्यूज़िक बहुत सुन रहा था. मेडिवल पंडित्स, कर्श काले, बहुत ट्रांस म्यूज़िक सुन रहा था. मैं बहुत वर्ल्ड म्यूज़िक सुन रहा था. तो ये सारे एक तरीके से मेरे इंस्पिरेशन थे कि क्योंकि मैं वैसा ही म्यूज़िक सुन रहा था. एंड बट मैं ये भी चाह रहा था कि मैं ये सब तो सुन रहा हूँ, बट मुझे अपना म्यूज़िक बनाना है, अपना साउंड बनाना है. बैंक आपने बनाया. Yes. तो टाइम लगा और फिर जब फाइनली एल्बम रिलीज़ हुई, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बातें करी और फिर नॉमिनेट भी हुआ. मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि मैं What was your age that time when it was released? 18. Fantastic, yeah. I mean, if you see the age, that's what people say. अरे यार, ये तो अभी बहुत छोटा है, बच्चा है. कोई सीखने की उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. 18 साल की उम्र में पहला एल्बम रिलीज किया, अपनी माँ के साथ रिलीज किया, हाँ. पिता के देहांत के बाद रिलीज किया. हाँ. कितनी बड़ी चीज है, देखिए आप. इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी देखिए आप, एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट, Yeah. ग्रेट यार. आई मीन, सुन के अच्छा लगा. Thank you. सुन के अच्छा लगा. Thank you. Now coming to can't avoid it. रंगी सारी जी. गुलाबी चुनरिया. तो लाजवाब गाना है साहब, आपने जो बनाया. इसकी कहानी तो बहुत ही बहुत मज़ेदार है क्योंकि ये गाना. अच्छा, ये गाना सुनाने के पहले हमारे दर्शकों को एक बार गा तो दीजिए साहब. बिल्कुल बिल्कुल. फिर उसके बारे में कहानी सुनेंगे रंगी सारी. बिल्कुल. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे,
रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे। क्या बात है सर, क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, Thank you. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यू वर नेवर अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग व्हेन इट वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम? नो, सो ये एक्चुअली ये जो ठुमरी है, एक्चुअली तो ये दादरा द है। ट्रेडिशनल ठुमरी? यस, तो इसको पॉपुलराइज किया गया है शुभा गुटो जी ने करेक्ट। बहुत साल पहले, Correct. एंड आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हर रेंडिशन, ओके। एंड मॉम भी गाती थी अपने शोज मैं में। एक बार इनको बता दूं इनकी मॉम के बारे में, वो आगे भी प्रश्न पूछूंगा। शी इज अ फिल्म फेयर अवार्ड विनर फॉर अ मूवी वेक अप सिट इकतारा। आई थिंक इट वाज वे बैक इन 2009। यस, यस, And she was nominated the second time in 2012. Of course, she didn't win, but she was nominated. So Yeah. आप उनको हल्के में मत लीजिएगा इनकी माता जी को। ये he is the son of a very illustrious mother, you know. Yeah. तो जब मुझे याद है मैं कॉलेज में ही था, एंड एक दिन ऐसी मॉम, मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा था, तो मॉम ने बोला यार ये मुझे कुछ गाना है, तो उन्होंने गाया, एंड मुझे भी इस गाने पे काम करना था। लाइक आई लव दैट सॉन्ग। तो फिर मैं उनको रिकॉर्ड किया, बट मेरे अंदर एक वो था कि यार इफ़ आई एम डूइंग दिस आई हैव टू मेक इट वेरी रिफ्रेशिंग, इट शुड साउंड वेरी कंटेम्प्रेरी एंड बहुत कूल साउंड करना चाहिए, समथिंग दैट यू नो पीपल कैन ऑल्सो रिलेट टू, उस गाने की एसेंस बरकरार रहे, एंड ऑल्सो आई ऑफर समथिंग न्यू टू पीपल। तो ये हमेशा से मेरा वो फंडा रहा है। अगर मैं कोई सूफियाना कलाम उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या कोई भी पद है या कुछ भी है, कोई पोइट्री को अगर कोई भी गा रहा है, तो उसकी वैल्यू नहीं बिगड़नी चाहिए। एंड कोई सिंगर भी गा रहा है, आई डोंट वांट देम टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स व्हाइल दे सिंगिंग, व्हाइल दे परफॉर्मिंग, बल्कि मैं अपना म्यूजिक अकोमोडेट करना चाहता हूँ उनकी सिंगिंग के साथ, सो दैट इट गिव्स देम रूम टू परफॉर्म ऑल्सो। तो वही मैंने इस गाने के साथ कोशिश करी, और ये गाना बन चुका था 2017 में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर इसको लाइव परफॉर्म करने लग गया था। आई वाज लाइक चलो मैं करूंगा इसको। How was the response when you? It was great. Like मैं ये सारे गाने करता था, and everyone used to like point out to this song. When is this song releasing? They're like होगा। तो फिर 2018 में हमें एक फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला था कि मुझे ये गाना बहुत पसंद आ गया है। उनको हमने सुनाया था, उनको बहुत पसंद आ गया था। एंड ये गाना ओरिजिनली वाज जस्ट रिकॉर्डेड एज अ सोलो सॉन्ग Of your mother. Yes, it wasn't a That is duet. what I was trying to tell you. You know, initial recording was with your mother. Yes. Then you became a part in the later half. Yes, because the director told me, Okay. you have a nice voice, you should also record it. Okay. And I was like, but this song is the song is from a woman's perspective. Yeah. मैं क्यों गाऊं? Love has got no perspective. Yeah, Basically, it's a that's love true. song. It's a teaser. Yes. अगर आप देखो तो चढ़ा रही है वो। बिल्कुल, वो बिल्कुल। चढ़ा रही है अपने beloved को, तो आप भी तो चढ़ा सकते हो। बिल्कुल। It's a love song. तो फिर मैं भी उसी माइंडसेट से, मैंने सोचा ठीक है मैं गाता हूँ। एंड आई थिंक व्हेन आई सैंग, एंड जब मैं भी सुनने लग गया, आई वाज लाइक यार दिस साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है। तो फिर वो फिल्म में एवरीवन वाज सो एक्साइटेड टू यू नो शूट दैट सॉन्ग, एंड इट वाज एक्चुअली फॉर धड़क, Okay. Okay. सैराट की जो रीमेक बन रही Okay. थी। Okay. बट फॉर वट एवर रीजन इट डिडंट हैपन। तो फिर हमारे पास था वो गाना, एंड वी वर लाइक अब हम क्या करें, अब 2019 हो गई है। हाँ, कोरोना आ गया। नहीं, कोरोना 2020 में शुरू हुआ था। okay. 19 में भी लाइक गाना है, आई थिंक वी शुड मेक अ वीडियो। तो मैं आई रीच्ड आउट टू अ फिल्म डायरेक्टर, ही वाज लाइक आई विल मेक लाइक मुझे एनिमेटेड वीडियो ही बनाना था। देयर इज समथिंग, मुझे एनिमेटेड वीडियोस से बहुत लगाव है, तो मैं चाह रहा था कि कुछ अलग हो। पर आपके एनिमेटेड वीडियोस में ये झलक मिलती है कि आप गा रहे हैं। ये झलक मिलती है कि आपकी माँ गा रही है। यू कैन आइडेंटिफाई विद द सिंगर्स। आप Yeah. जो एनिमेशन आपने जैसे ये गाना बनाया, जी। मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। अच्छा। ऐसा पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आपके जहन में सबकॉन्शियसली आप जो बनाते हैं उसमें थोड़ा अपना सूरत या सीरत डाल देते हैं। बिल्कुल। ऐसा है क्या? बिल्कुल, मतलब एज इन कोशिश तो ये कि अपना एक प्रिंट जाए। 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 एग्जैक्टली।
So that is more beautiful, na? Because I know you. Yeah. So the crowd doesn't know you. Yes. But then those people who know, they know it is you. Yeah. तो इस वीडियो के साथ ऑब्जेक्टिव यही था कि वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट कि हर एक फ्रेम जो एनिमेटेड रहेगा वो बेसिकली विल बी लाइक अ पेंटिंग. Okay. तो जो भी इसका कॉन्सेप्ट है, दीज आर लाइक पेंटिंग्स. राधा कृष्ण की स्टोरी है और उनके ही डांसेस के ऊपर है एंड इट मैच कट्स विद आवर परफॉर्मेंसेस. तो ऐसा कॉन्सेप्ट था. फिर शूट किया, वीडियो बहुत अच्छा बन गया एंड एवरीथिंग. यू लाइक अब पैंडेमिक शुरू हो गया, अब क्या करें. एंड आई वाज ऑफ दैट ओपिनियन कि मुझे नहीं करना है रिलीज, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम टू रिलीज. सब घर पे बैठे हैं, लाइक पैंडेमिक में कौन गाना रिलीज करता है. आई वांटेड टू रिलीज इट ऑन व्हेन थिंग्स आर. या my mom was of the other opinion. She was like, this is the right time. Because everyone is at home, nobody has anything to look up to. We are giving them something to look up to and something that might bring some joy in their lives. And she was absolutely right. So we released this song and people started making dance videos and like गाना. पर पूरा पैंडेमिक में तो पूरा सीन ही सबको बहुत अलग दिखा था. 22 millions in Spotify. What I was reading, I don't know how far. It's much more. Right now it's like 44 million. My God. And about plus 12 million in YouTube. Now it's 18 million. My God. It's not a joke, yeah. I think it's And it's all organic. All organic. Yeah, that is the biggest thing. It's all organic. It's a very huge amount, yeah. It's a very huge amount. As you said, it's organic, totally organic. Yes, बिल्कुल. तो वो उस चीज़ की बहुत खुशी अभी भी है कि एज इन हमने खुद से सब किया एंड वी आर स्टिल गेटिंग यू नो रॉयल्टीज फॉर द सॉन्ग. गाना बन गया कनिष्क आपका. बिल्कुल. इतना कि वो फिल्म में चला गया वापस. अब फाइनली फिल्म में चला गया था, जो कि बहुत अच्छी अचीवमेंट थी कि इतना लोगों को पसंद आ गया कि जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया था वो लोग वापस आए. बट वो भी पहले किसी और फिल्म में जा रहा था, फिर किसी और फिल्म में, फिर फाइनली जुग जुग जियो में गया गाना. ईश्वर करता सबर कर रहा था, लेकिन कितना. देखिए आप जो बैनर आपको मिला वो तो अल्टीमेट बैनर मिला. बिल्कुल. धर्मा प्रोडक्शन इज करण जोहर. यस. सी द स्टार कास्ट. नीतू कपूर मेकिंग अ कमबैक आफ्टर donkey years. Yeah. And what a song, and how beautifully it was picturized, you know. Absolutely. So I think God gave you the sila of being patient, you know. Yeah, and now we're nominated at IFA Awards. All the best for it. Thank When are the you. results coming? I think February में. Bhaiya, all the best. God give him all the best. This song is nominated for IFA. The results are coming in February. I hope you win, Kanish, so that you can have part number 2 with me. Thank you. Okay. Now, coming to your, of course, these are as a cult गाने. आपकी ट्रांस विद खुसरूत एक कल्ट होगी. आपने वाकई में, मैं आपसे बात करने के पहले मैंने आपके बहुत गाने सुने, वाकई में सुने. सच्चा साहिब आपका सुना मैंने. मेरे को एक गाना जो मैं आपसे गवाऊंगा, आपने आपकी याद जो गजल फैज अहमद साहब पर आपकी गाई है, क्या ब्यूटीफुल गाई है. Thank you. क्या ब्यूटीफुल गाई है यार. मेरे को वाकई मजा आ गया है. तो गजल का एक जो आपने ट्रांसफर किया अपनी आवाज में, और फैज साहब तो आई रेट हिम वेरी हाई है. Yeah. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. Yes. वाज इट टफ? It was. मुझे याद है ये मैं 2020 में मैं पढ़ने चला गया था वेलेंसिया स्पेन. तो मैं 1 साल वहाँ पे मास्टर्स करा था बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक से. तो ये एक तरीके से जो प्रोजेक्ट था जिसमें आपकी याद, उल्टे होर ज़माने एंड साचा साहिब भी क्या गाया साहब आपने. क्या इट्स अ वेरी नहीं, ब्यूटीफुल. मैंने नहीं गाया है ये गाना. जावेद बशीर जी ने गाया. जावेद बशीर जी, सॉरी. आपने And इसका यू हैव I produced the बिल्कुल. ब्यूटीफुली सर. थैंक यू. ब्यूटीफुली कंपोज्ड द होल थिंग. व्हाट अबाउट फैज साहब की? वो तो आपने गाई. ये मैंने गाई है, मैंने कंपोज भी करी है, प्रोड्यूस भी मैंने खुद करी है. तो एक्चुअली ये जो गाना है आपकी याद आती रही रात भर, ये आई थिंक एक किसी पुरानी मूवी में आया था गाना जो मखदूम, हाँ, जो मखदूम साहब थे उन्होंने लिखा था. ओके. सो दिस वन जो मैंने गाया है ये फैज साहब ने मखदूम की मेमोरी में लिखा है. ओके. तो सर 2 लाइन तो इसका गा दीजिए. जी, मजा आ जाएगा साहब. बहुत ही खूबसूरत गाया आपने उसको. थैंक यू. आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी
दुखाती रही रात भर। क्या बात है साहब, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। ये मैंने एक्चुअली कंपोज वेलेंसिया में करी थी। ओके, और मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट, जो ये 3 गानों का प्रोजेक्ट था, जिसको मुझे कंपोज करना था, प्रोड्यूस करना था और एक गानों का पूरा मिक्स मास्टर करना था एंड वीडियोस भी बनाने थे, ये सब दिस वाज लाइक अ पार्ट ऑफ माय फाइनल प्रोजेक्ट एट बर्कली। तो ये मतलब, और तीनों गानों के वीडियोस ब्लैक एंड वाइट में। तो हाँ, ये वाला आपका ब्लैक एंड व्हाइट जो मैंने सुना। जी जी जी, बिल्कुल आपकी याद, साचा साहिब का भी वीडियो, साहिब भी, जी। उल्टे और ज़माने पंजाबी काफ़ी है, जिसको बाबा बुल्ले शाह ने जी, लिखी थी। तो ये भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं करी थी, एंड दैट वाज द होल objective of this course and to do this project also. Coming to the end now, because I know you're busy, you got your practice session at 3 o'clock. Yeah. This is a question which I had asked your elder brother Kavish. Uh-huh. And I had told him after the show that if any time I get a chance to have a chat with your younger brother and your mother, I will ask this question to all of them. Okay. मैं उसी जुबान से पूछता हूँ जिस जुबान से मैंने कविश से पूछा था। जी। हम पंजाबी हैं, आप भी पंजाबी हैं? नहीं, हम लोग यूपी से। अच्छा, यूपी से। चलो, हमारे पंजाबी में कहते हैं जितने बर्तन भांडे एक किचन में होते हैं, हाँ। रसोई में होते हैं, उतनी आवाजें होती हैं। हाँ। So 3 big egos, your mom, Yeah. Mr. Kavish Seth, Mr. Kanish Seth, all under the same roof. Yes. Any ego problems? Absolutely, मतलब बहुत होती हैं, बिकॉज आपके इतने क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं। आप झगड़े, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं क्रिएटिव, मतलब एज इन सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस मेरे बड़े भाई से ही हुए हैं, क्योंकि उनका ओपिनियन अब म्यूज़िक को लेके बहुत अलग है। वो अगर जैसे कोई भी गाना बना रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि उसमें बहुत इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हो, एंड आई एम लाइक, आई एम ऑल अबाउट दैट। तो मेरा इंस्टिंक्ट कुछ और कहता है, उनका इंस्टिंक्ट कुछ और कहता है, एंड मॉम का इंस्टिंक्ट कुछ और है, बट शी इज द मोस्ट ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, बिकॉज उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। उनको अपनी कॉम्पोजिशन, अपनी पोएट्री से ज़्यादा लगाव है। प्रोडक्शन जो होता है गाने का, शी इज़ वेरी ओपन टू थिंग्स। ऑन द अदर हैंड मैं हर एक चीज़ को बहुत ही टोटल पैकेज की तरह देखता हूँ। लाइकवाइज माई ब्रदर ऑल्सो सीज इट, बट उनका अप्रोच टुवर्ड्स म्यूजिक बहुत अलग है। तो ऐसी बहुत लड़ाइयाँ हुई है बहुत। एंड आई थिंक जैसे हम और बड़े हुए हैं और रियलाइज हुआ है, तो हम एक दूसरे को वो स्पेस देते हैं एंड वी रिस्पेक्ट इट लाइक दिस। ये आपका है, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। एंड यू नो लाइक हमें भी रियलाइज होता है कि हमने किस बातों पे लड़ रहे थे नाउ, बट इट्स रियली नाइस। पर मुझे यही लगता है हम तीनों में से सबसे मैच्योर्ड मॉम ही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत ओपन है, और उनका अगर आप काम भी देखें तो वो हर टाइप के आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर चुकी हैं। बहुत अच्छा गाती हैं आपकी मॉम, बहुत अच्छा। शी इज वेरी गुड। गजल्स की उनकी कुछ तो बहुत खूबसूरत है साहब। मैन, शी इज कोलैबोरेटेड विद डीजेस and EDM artists and like what not, and the product has been good, you know? Yeah, and like मतलब आप इतना ओपन माइंड है, पर वही है, वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्पेसेस। मैं एक प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मैं हर एक चीज़ को वैसे देखता हूँ कि गाना ऐसे प्रोड्यूस होना चाहिए वो, और अगर कोई और बोलता है नहीं फिर मैं वैसा हो जाता हूँ। मॉम्स लाइक क्यों नहीं हो सकता है। एंड माई ब्रदर हैज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट ओपिनियन। तो पर वही है, मॉम हम दोनों को ज्यादा स्पेस देती है, तुम अपना करो। मेरे ख्याल से आपने मेरा कविश का इंटरव्यू देखा था, बिकॉज़ यू हैव गिवन द सेम रिप्लाई। But this is the truth. It's a fact. Yes. Anything for our viewers before I finish off the show, Kanish? Future albums which are coming, just share with us. Yeah, albums का तो मुझे पता नहीं, but बहुत सारे singles रिलीज होने वाले हैं, और मैं ऑफ लेटली एक आध कोई गाना जो आपको उस पे अच्छा लगता है, जो एक हम आपकी कोई भी एल्बम होगी तो हम सुनेंगे उसको, आपको जो अच्छा लगता है। मोस्टली जैन एंड या फरवरी में मैं एक गाना रिलीज कर रहा हूँ, which is not like something which is very मतलब ऐसा गाना है जो मैंने अब तक रिलीज किया नहीं। It's like a nice pop song। अरे वाह।
तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए क्योंकि मुझे वो गाना बहुत पसंद है। उसकी 2 लाइन गाना पसंद करेंगे? थोड़ा गा सकते हाँ थोड़ा तरन्नुम में, ताकि हम लोग को याद रहेगा कि जब एल्बम आएगी कि सुनना है भाई, कनिष्ठ से सुना था उस जमाने में। जिंदगी के शोर में, जिंदगी के शोर में दिल आज कहना चाहे, खामोशी के छोर पे बात कोई रह ना जाए, खुद से खुद की मुलाकातें आज तन्हा रह ना जाए, यूं दो दिन है सभी काटे आज तन्हा रह ना जाए, चल वहाँ जहाँ पे दिल है, चल वहाँ जहाँ पे दिल है, चल वहाँ जहाँ पे दिल है, चल वहाँ जहाँ पे दिल है। वाह 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 sir, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। So these songs are being released by the end of Jan. End of Jan, February mostly. Before marriage, after marriage. देखते हैं क्या प्लान बनते हैं, नहीं। बट बाकी सारे गाने भी ऐसे हैं कि एक गाना मैं एक Amazon के शो के लिए कर रहा हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता बट नहीं मत करिए, जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा लगे। नहीं, अब मैं ऐसा हो रहा है कि मैं काफी सारे फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोजेक्ट्स के लिए गाने बना रहा हूँ, व्हिच इज वेरी एक्साइटिंग। Yeah. तो एक Amazon शो के लिए एक गाना है और एक शायद मोस्टली मैं पूरी सीरीज का म्यूजिक करने वाला हूँ Amazon का। Very nice, very और nice. अभी मार्च में एक फिल्म आ रही है जिसका मैंने म्यूजिक सुपरविजन किया था। बताइए। ये एक फिल्म है गुलमोहर नाम से। Okay. और इसका म्यूजिक सिड खोसला ने दिया है, जो इज लाइक अ 3-time Emmy Award winner. Okay. And he's based out of LA. और You have supervised the whole. yes, I've done the music supervision. और इसमें मनोज वाजपेयी जी हैं, शर्मिला टैगोर जी हैं। क्या बात, क्या जो बात। 11 साल बाद। अरे क्या बात, क्या बात। एंड काफी एक्साइटिंग कास्ट है, बहुत प्यारी स्टोरी है और जरूर देखेंगे सर, बहुत जरूर बहुत देखेंगे। प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। बिल्कुल देखेंगे। और मैं कनिष्ठ से अब ज्यादा क्यों लूंगा कि इनका टाइम हो रहा है। he has to go for his performance now, so करेगा। लेकिन कनिष्ठ, thank you so much, and thank you so much for giving time in such a short duration, No, and all the best for your Thank you future. so much. जय हिंद सर।